Hello friends, yes Varunda. Today our point is electronic displacement in covalent bond of substrate. Yeah, finally there are three constituent of chemical reaction. First one substrate, second one reactant, third one product. जो रिएक्टेंट में जो होता है रिएक्टेंट में जो होता है क्लीवेज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, वो हमने देख लिया। उनके ऊपर से जो रिएजेंट मिलते हैं वो भी हमने देख लिया। नाउ यह सबस्ट्रेट में ऐसे कौन से फिनोमिनन होती है वो देखना है। HIRE, हायर अथवा हीरे। फर्स्ट वन इज हाइपर कॉन्जुगेशन, second one inductive effect, third one resonance effect. Yes, Ramesh is the name of boy. Mesomeric, you can say mesomeric effect, Spandan effect, all are same. Then electromeric effect. Yes, today our point is hyperconjugation. Otherwise, enantiomer effect, it is also known as a Nathan-Baker effect. It is also known as a sp conjugation. Yes, this effect was first of all developed by the scientists Nathan and Baker. Nathan and Baker is the name of scientists. That's why this effect is also known as a Nathan-Baker effect. Hyperconjugation ज़्यादा use होता है. This effect always arises when sigma bond is directly attached with double bond. When sigma bond and double bond both are neighboring to each other. This is the carbon of alkyl group. ये alkyl group में CH bond होंगे, तो CH bond के sigma electron were dragged toward the double bond, and this phenomenon is known as hyperconjugation. Suppose for illustration CH3 single bond CH double bond CH2. In this system, yes, prop 1 in double bond and single bond both are neighboring to each other. In CH3, there is a 3 CH type bonds are there. Yes, CH3, this carbon is sp3 hybridized carbon. That's why its shape will be tetrahedral. Suppose this is this carbon, उसको ऐसा कर दो तो ये कार्बन है, दिस कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ CH होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। ये बॉन्ड से ये डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस है तीनों बॉन्ड से। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन of CH bond will move या transfer या migrate on CH bond, and simultaneously pi bond electron will migrate on CH2. That's why, yes, we will get first structure. Here double bonded carbon, this carbon is known as alpha carbon. Neighboring carbon is known as a beta carbon. Beta carbon possesses 3 hydrogen. That's why there are 3 possibilities for the conjugated structure. So this hydrogen, this sigma electron will migrate from CH bond to between carbon and CH. Simultaneously this pi bond के इलेक्ट्रॉन ये CH2 पे ट्रांसफर होंगे तो ये स्ट्रक्चर मिलता है, दिस इज कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। सेकंड पॉसिबिलिटी, ये हाइड्रोजन के साथ जो CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ ट्रांसफर होंगे, साइमल्टेनियसली ये ट्रांसफर होगा तो ये सेकंड स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये थर्ड CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो साइमल्टेनियसली ये थर्ड सिग्मा ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ conjugated delocalization of electron will be on 3 carbon and 1 hydrogen. Yes, delocalization जितना ज़्यादा उतनी stability ज़्यादा, otherwise you can say
Yes, in other words, how many beta number of hydrogen, beta हाइड्रोजन कितने हैं? डबल बॉन्डेड कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे, नेबरिंग कार्बन को हम बीटा कार्बन बोलेंगे। दिस बीटा कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन जुड़े उसको हम बीटा हाइड्रोजन बोलेंगे। या बीटा हाइड्रोजन 3 है, 1 2 3। The hydrogen which are directly added to the beta carbon, they are known as a beta hydrogen. तो जितना बीटा हाइड्रोजन होंगे उतना कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड ऑलवेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ये कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर कितने? या CH3 ये अल्फा कार्बन है, उनके साथ एक भी बीटा कार्बन नहीं है। अच्छा, वन मोर थिंग, इन CH3CH2, तो दिस इज अल्फा कार्बन, सपोज दिस इज बीटा कार्बन, तो यहाँ बीटा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ये दिस इज अल्फा कार्बन, सपोज दिस इज बीटा कार्बन 2 है, तो बीटा हाइड्रोजन 6 होंगे। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, बीटा कार्बन 3 है, 3 CH3, 9 बीटा हाइड्रोजन है। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इज इक्वल टू बीटा हाइड्रोजन प्लस 1। सपोज यहाँ बीटा हाइड्रोजन 3 है, ये 3 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होगा, एक और ये +1 4 होगा। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर विल बी इक्वल टू बीटा +1। तो यहाँ बीटा कुछ नहीं, एक ही स्ट्रक्चर होगा। यहाँ 3 बीटा कार्बन है, तो 3 + 1 4 स्ट्रक्चर होंगे कॉन्जुगेटेड। यहाँ 3 3 6 बीटा हाइड्रोजन है, 6 + 1 7 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। इन दिस केस 9 हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, 9 + 1 10 कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे। जितने कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे उतनी स्टेबिलिटी उनकी ज्यादा होगी। ये क्लियर समझ लो। By using the hyperconjugation, we can explain the stability of substituted alkene compound. This is ethene. Ethene में से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय मिथाइल ग्रुप, तो prop 1 in। यहाँ दोनों कार्बन पर से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके 2 मिथाइल लगा दो, तो ये ब्यूटूइन। यहाँ से दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर दो, 2 मिथाइल ग्रुप, यहाँ से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करो, या यस ब्यूटूइन, 2 मिथाइल ब्यूटूइन। और यहाँ दोनों कार्बन पर से दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटूइन। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये अल्फा कार्बन है, तो ये दिस इज बीटा कार्बन, बीटा कार्बन CH3 है, तो बीटा हाइड्रोजन 3 हो गए। यहाँ एक भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ 3, ये भी बीटा कार्बन, ये भी बीटा कार्बन, तो बीटा हाइड्रोजन 6 हो गए। यहाँ 1 2 3 बीटा हाइड्रोजन 9 है, यहाँ बीटा हाइड्रोजन 12 है। तो टोटल स्ट्रक्चर, कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बीटा +1, तो यहाँ 0 + 1 स्ट्रक्चर है। यहाँ इन दिस केस कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर विल बी 3 + 1 4। In this case, conjugated structure will be 6 + 1 7, यहाँ 9 + 1 10। तो as we go from left hand side to right hand side, stability, इनकी stability increase होती जाएगी। Yes, तो ये less stable है, थोड़ा ज़्यादा stable है, और ज़्यादा stable है, ये ज़्यादा stable है। This will be maximum stable. तो stability we can explain, we can explain the stability of substituted alkene by hyperconjugation. Suppose डबल बॉन्ड के बाजू में नजदीक में सिंगल बॉन्ड है, एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.54 होती है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, यस ड्यू टू कॉन्जुगेशन, यस ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, यस 1.54 से बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ पाई बॉन्ड की p ऑर्बिटल और
CH bond की S orbital will overlap to each other. That's why this effect is known as a sp conjugation. Okay वृंदा, यहाँ खत्म करते हैं. Next time we will see the inductive effect. Okay, thank you very much.